व्हेन वी रेफर अदर प्लेसेस तो उससे एक फीलिंग आ जाती है जो कि एग्जाम में नहीं मिलता है। एग्जाम में पूरा पूरी अपने आप लिखना पड़ता है। और साथ में जब आप लोग घर से मॉक टेस्ट का आंसर दे रहे हो, मे बी इन प्लेस ऑफ 45 मिनट्स यू आर टेकिंग 50। आप सोचते हो 5 मिनट तो ज्यादा चलेगा, बट ये नहीं सोचते कि एग्जाम में तो 5 मिनट्स क्या 5 माने 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे टाइम ओवर 45 मिनट्स देन इट विल बी सबमिटेड। सो द क्वेश्चन इज दैट आई टेक दिस टेस्ट टू ब्रिंग मोर फोकस्ड इन योरसेल्फ कि भाई आप इतना ही टाइम में आंसर दे पाओगे, आपको और नहीं मिलेगा। अभी भी क्या होता है कि सपोज आई विल सेंड द क्वेश्चन, देन समबडी विल सबमिट इन 50 मिनट्स 55 मिनट्स। आप ये नहीं समझ रहे कि एग्जाम में 45 मिनट्स 1 सेकेंड भी नहीं मिलेगा। तो हमें मॉक टेस्ट इस सोचकर करना है जैसे कर रहे हैं वैसा ही एग्जाम में मिलेगा, और कोई चीज रेफर नहीं करना है। बट बिफोर गिविंग द टेस्ट, सम ऑफ द थिंग्स विच यू आर कंटिन्यूअसली मेकिंग मिस्टेक्स, यू ऑल, मेरे को वहां पर ध्यान देना है। मैं नॉर्मली ऐसा बोलता हूं कि मैनेजमेंट लेवल F2, स्ट्रेटेजिक लेवल F3, द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन राइटिंग आंसर्स, बिकॉज F2 में अकाउंटिंग नॉलेज ठीक से होता नहीं है, तो मैनेजमेंट की स्टडी में F2 का क्वेश्चन दे परफॉर्म वेरी बैडली। बट मैंने देखा आप लोग लीजिंग का आंसर बार बार गलत लिख रहे हैं। इतना क्यों सोचना है यार, सिंपल है। मैं अगर एसेट्स खरीद रहा हूं, इफ आई एम परचेजिंग द एसेट, देन आई एम शोइंग द एसेट ऑन द एसेट साइड, एंड इफ आई एम परचेजिंग द एसेट बाय टेकिंग लोन, so I am showing loan in the liability side. Asset will be depreciated during the life of the asset. Loan will be repaid along with interest. Interest will be going to PL account, and the principal payment will be deducted from the loan amount, and the balance will remain liability till the time loan is not repaid. अगर हम लोग लीज पे ले रहे हैं, यही बात है। It is not an asset, it is right to use asset. If the asset life is 10 years, I am getting the lease for 5 years. So I will be recording the assets right to use asset for 5 years. What is the value? Whatever I will pay to the lessee or lessor, whatever I will pay to the lessor, present value of that payment. But that is not the asset value. अगर मेरा asset install करने में, मंगाने में कुछ खर्चा लग रहा है, then that will be added to the asset value. So asset value will be present value of the lease payments plus the initial any direct cost related with the asset. That will be the asset value. The asset will be depreciated during the lease term or the useful life of the asset, whichever is lower. Generally, the lease term is less and the life is more, but it can be inverse also. And it can be that कि suppose 5 साल का asset है, हम लोग 4 साल के लिए लीज पे ले रहे हैं, बट 1 साल के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमें मालूम है हम एक्सटेंड करेंगे. Then also we will depreciate the asset for 5 years because we are going to use the asset for entire 5 years. Even though we are mentioning right to use asset, आपको depreciation straight line you want to do, WDV, that's your call. That's accounting is not saying that the method of depreciation should be this. As far as the amount payable to the lessor is concerned, the present value of the amount payable to the lessor is a lease liability. That will be paid to the lessor along with interest in subsequent period. So interest will be going to PL account and the principal will be adjusted from the money liability amount. The liability need to be broken down into 2 parts. One is operating non-current current. Under current liability, we will be showing that portion which we need to pay to the lessor within 1 year. And under non-current, we need to show that portion which we need to pay beyond 1 year. If in the question figures are given, अगर क्वेश्चन के अंदर फिगर्स दिए हुए हैं, तो जो फिगर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, those figures you need to use in your write-up. Otherwise, you will be getting half marks. Because technically you are correct. Asset लिखा वगैरह सब लिखा, लेकिन जो फिगर्स अटैचमेंट में दिए वो नहीं यूज कर रहे हैं. That means you are not bringing the actual sense in the answer. Technically you are perfect, but while application of your technical knowledge into the scenario, you are not perfect. तो आपको अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा. और अगर आप टेक्निकली भी भूल भाल लिख रहे हैं, तो वहां भी 4 में से कम होते जाएगा. तो इन दैट केस आपको नंबर पूरा मिलेगा ही नहीं. If you want to write about leasing in cash flow statement terms also, you can. There is no problem. But आपको सोचना है कि अगर आप लोन लेते हो, forget about leasing. If you take loan, it is financing.
इफ यू रीपे लोन इट इज फाइनेंसिंग. तो अगर आप लीज का पेमेंट कर रहे हो इट इज फाइनेंसिंग, इट इज नॉट ऑपरेशनल और इन्वेस्टमेंट. अगर आप एसेट्स लीज पे ले रहे हो, राइट टू यूज एसेट इज इन्वेस्टमेंट. तो जिस समय आप एसेट लीज पे लोगे उस समय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में एसेट विल कम एंड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लीज लायबिलिटी विल कम. द नेट इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी जीरो. जब आप इंटरेस्ट पे करोगे लेसर को, दैट विल बी कमिंग इन ऑपरेशंस. तो आपको गलत नहीं लिखना है, गलत निकले से नंबर नहीं है. बट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जाम, वी विल बी राइटिंग टेक्निकल राइट अप रिलेटिंग टू पीएल बैलेंस शीट, we will be using the data which is given in the question, and we will be writing cash flow also, will be slightly dicey, उतना टाइम मिलेगा नहीं. but if you are writing cash flow also, that is not a problem. आप लिखिए, अच्छा ही है. that it is not that if model answer is not writing and I am writing about that तो कुछ नंबर कटेगा, नहीं भाई, अच्छा है. बट गलत लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, सिनेरियो को यूज नहीं करने से आधा नंबर ही मिलेगा. The second, the question which was events after the reporting period, उसमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन नहीं है. वो बोला जा रहा है कि मेरा मार्च ईयर एंडिंग है और अभी तक सराफ एकेडमी, सराफ गुरुकुल का पीएल बैलेंस शीट हमने जमा नहीं किया है. बिकॉज फॉर कंपनी द लास्ट डेट टू फाइल द रिटर्न इज सितंबर. फॉर इंडिविजुअल द लास्ट डेट वॉज जुलाई. सो वी हैव सबमिटेड रिटर्न ऑफ प्रकाश सराफ, विदिशा सराफ, but we have not submitted details of our corporate. We have further 2 months, August, September. अभी टाइम है, रेडी है वो भी, लेकिन हमने नहीं किया अभी तक. अब ये जो मार्च बीत गया, अप्रैल से लेकर अभी तक, जब तक हम सबमिट नहीं करते, कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सेल हुआ है, बट उसका पिछले साल से कोई ताल्लुक नहीं है. आई एम सेइंग दोज इवेंट्स विच अराइजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट दे आर को-रिलेटिंग टू मार्च 2022. Those types of events are divided into 2 categories, adjusting, non-adjusting. Adjusting events means वो arise अभी हो रहा है, but उसका effect मार्च 22 के PL अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाना होगा. Non-adjusting मतलब arise अभी हो रहा है, उसका effect PL बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है. लेकिन non-adjusting के अंदर if it is severe and it is questioning about the going concern of Saraf Academy, तब उसका effect हमें दिखाना है, even though it is non-adjusting. Adjusting events में there are few events. Any debtors receivable thing, any court case, any income tax provision settlement and all that, or any inventory which has market value lower than the cost on March also. We are saying these adjusting, why? Because they are arising today, but there was some feeling already there on March 2022. That is a further development today. But if something which was no feeling on March 2022, that arises later, then it is non-adjusting. Fire, loss by theft, loss by fire. कोई ऐसा चीज हुआ जो पहले नहीं मालूम था, तो आप उसको एडजस्टिंग नहीं, नॉन एडजस्टिंग बोलेंगे. फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स यू नीड टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स द इवेंट, द डिस्क्लोजर्स. बट फॉर एडजस्टिंग इवेंट्स यू नीड टू रिकॉर्ड इन पीएल अकाउंट बैलेंस शीट वेयर एवर रिक्वायर्ड, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी डिस्क्लोजिंग नोट्स ऑल्सो. बट अगर मान लीजिए आपका लॉस बाई थेफ्ट फायर हुआ, एंड विच इज वेरी ह्यूज, which is questioning the going concern, even though non-adjusting, because there was no feeling on March that there will be loss by fire or theft. कहां से पता चलेगा? Non-adjusting, but still since it is severe and it is questioning the going concern of the company, तो अगर going concern is questionable, then it is always treated as adjusting. Adjusting in the sense it is non-adjusting, but the effect of this need to be given in the PL account balance sheet. तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, डेटर्स है, पहले गड़बड़ था, बाद में पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको यह लिखना है कि एडजस्टिंग इवेंट है और इसका इफेक्ट हमें मार्च 2020 की पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाना है. दूसरा वाला है लॉस बाय फायर, उसमें यह नहीं बोलना है कि एनआरबी लोअर है, बोलिए, बट उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. आपको बोलना है कि वो नॉन एडजस्टिंग है और उसको हम पीएल बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स डिस्क्लोज करेंगे. वहां पर आप लिखिए कि मार्केट वैल्यू लोअर देन द कॉस्ट, वी विल बी डिस्क्लोजिंग द फिगर, बोथ द फिगर्स कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, बट उसका पीएल बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है. तो मान लीजिए हम लोग ये पढ़े थे लेकिन नहीं ध्यान है तो हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं. अब मेरे को क्या मालूम कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं. लाइक देवश्री यू आस्क दैट सर फीफो लीफो आएगा क्या? देखिए सिलेबस में सब कुछ है,
बट नॉर्मली मैंने तो नहीं देखा कि वो फीफो लीफो बेस्ड क्वेश्चन के स्टडी में देते हैं, बिकॉज उनको लगता है ये बहुत नीचे हो जाएगा। बट अगर दे दिए तो वी कांट क्वेश्चन दैट इट इज आउट ऑफ द सिलेबस। कोई कैलकुलेशन नहीं करने दे रहे, बट द अफेक्ट ऑन द इन्वेंट्री वैल्यू बिकॉज ऑफ फीफो लीफो एवरेज। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना सामान गया, नया वाला अपने पास है, उसका प्राइसेस अगर बढ़ गया है तो इन्वेंट्री वैल्यू विल बी हायर, प्रॉफिट विल बी हायर, इन द बैलेंस शीट एसेट्स वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यू विल बी हाई। मतलब वहां पर कुछ आ सकता है, दे मे, बट कांट क्वेश्चन कि वो लीफो फीफो ये सब देंगे कि नहीं, बोलना मुश्किल है भाई। मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज आर लीजिंग, नॉन करंट एसेट्स ट्रीटमेंट, इंपेयरमेंट, रीवैल्यूएशन एंड ऑल दैट, एंड आई कैन से दैट रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू आप लोगों के कम आता है बिकॉज दैट इज अ सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट लेवल, बट फिर भी अगर हम लोग शॉर्ट में रेवेन्यू, देयर आर 5 प्रिंसिपल्स, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट इज द प्राइस, then what is the obligations and rights, then allocating the price between the different parts, and then whether the revenue should be recognized now on date of sale or later on during the course of completion. तो थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल रेवेन्यू से भी जानना है, आ सकता है, बट जनरली ये एरियाज को वो लोग ज्यादा टच अपॉन करते हैं। बट अगर कोई दूसरा एरिया देंगे, वी कांट क्वेश्चन व्हाई दे आर गिविंग, वी कांट क्वेश्चन देम, व्हाटएवर फ्रॉम द सिलेबस दे कैन गिव। मिस्टर बागची बोल रहे थे सर बिग डेटा क्या होता है, तो मेरे को बिग डेटा अपने हिसाब से ही समझ में आता है। मेरा वेबसाइट पे कोई आया, 10 मिनट 5 मिनट है, मेरे को उसका डेटा मिल गया। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई गया, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर मेरे को उसका डेटा मिल गया। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर की तरफ से डेटा मिल गया, कि मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे, कुछ कोरा में, कहीं पर कुछ भी कुछ बोल रहा है। लाइक जस्ट नाउ माय टीम सेंट मी अ लिंक, क्या मालूम क्या लिंक भेजा, कि सर यहां पर लिखा हुआ है टॉप ACCA 10 ट्यूशन प्रोवाइडर्स, उसमें हम लोग का नाम नहीं है। तो उसमें 3 ही लोग का नाम था, एक द वॉल स्ट्रीट और एक VG लर्निंग और एक जेल। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दे आर गुड और बैड, दैट्स देयर लुकआउट, बट अगर वो कोरा पे उनका 3 का नाम है और स्टूडेंट अगर उनको ज्वाइन करेगा, करे यार। अगर उसको इससे मतलब ही नहीं है कि क्लास कैसी है, नहीं है, डेमो कहां है, कि खाली इससे मतलब है कि ACCA क्या है ये समझाने से, दैट्स देयर कॉल, बिकॉज वी आर नॉट ऑन सोशल मीडिया लाइक अदर्स। इफ वी टॉक ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, हम उस तरह से नहीं, हम केवल एज अ सर्विस टाइप हैं, हम कोई मार्केटिंग सोशल मीडिया पे नहीं करते, जस्ट talking about sensible things in the social media, whether somebody likes or not doesn't matter. Maybe this is bad strategy, but that is my strategy, maybe you can say. So मेरा बोलने का मतलब है, और साथ में स्टूडेंट मेरे से डायरेक्टली कॉल किया, कनेक्ट किया, मेल किया, वेबसाइट पे गया, मैसेज किया, कुछ भी, ये डेटा हमारे पास आ रहा है, कॉम्पिटिटर का डेटा आ रहा है, कोई ने शेयर किया तो मैंने देखा कॉम्पिटिटर कहां कहां क्या कर रहा है, वो समझ में आया। इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल आ रही है, क्या वो लोग प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे डेटा तो कोई बंद नहीं हो रहे हैं ना। इवन दो आई एम टेकिंग द क्लास, बट दीज डेटा आर गैदरिंग। ये सारा डेटा को कैप्चर करना, पता लगाना, व्हाट विल बी द सेल, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ACCA सीमा, हाउ टू अट्रैक्ट देम, हाउ टू गिव देम द क्वालिटी ऑफ द क्लासेस, सब कुछ कैसे, ये तो करना होगा ना। कितने लेवल पे करेंगे ये मेरा मर्जी है। सिमिलरली अगर हम लोग अगर मेल्स एट होम हैं, तो हम लोग के पास भी डेटा अपने वेबसाइट से, ऐप से, कॉम्पिटिटर से, डेटा सब न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जर्नल से, सब तरह का डेटा आ रहा है अबाउट कॉम्पिटिटर, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट मार्केट, अबाउट कस्टमर्स, अबाउट लाइकिंग, अबाउट प्राइसेस, अबाउट सो मेनी थिंग्स। वो डेटा को मेरे को यूज तो करना होगा बिजनेस में, बट यूजिंग दैट डेटा इज वेरी डिफिकल्ट। A proper software development, hardware development, and you can see knowledgeable persons, IT persons, जिनको सेंस ऑफ डेटा समझ में आए। बिकॉज अगर कोई PL अकाउंट बैलेंस शीट है, कितने लोगों को समझ में आता है कि कहां गड़बड़ी है, कहां अच्छा है। इवन व्हेन आई टीच द स्ट्रेटेजिक लेवल स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग की तो बात ही क्या करें, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो आई मीन टू से दैट एनालाइजिंग द डेटा, सॉफ्टवेयर, गेटिंग दोज डेटा, वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेस, वॉल्यूम ऑफ सेविंग पार्ट, आपको ये सब तो चाहिएगा ना। उसका बेनिफिट बहुत है, बिकॉज दुनिया इज डिपेंडेंट ऑन डेटा, द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन डेटा।
डेटा के बजाय आप कुछ नहीं कर सकते, डेटा तो आदमी पैसे देकर खरीद रहा है, बट हाउ मच ऑथेंटिसिटी वी कैन प्लेस ऑन दोज डेटा विच वी आर परचेजिंग बाई पेइंग मनी इज अ क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज द वेरासिटी ऑफ दोज डेटा, क्या वो सही है कि नहीं है, वो आपके ऊपर है. डेटा बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, हाउ मच प्रोसेसिंग यू शुड बी डूइंग, इट्स अपॉन यू. ये हम लोग का बेसिक नॉलेज है. अब जो क्वेश्चन में सिनेरियो दिया हुआ है उसको तो वह हाफ यूज करना है ना, टू बिल्ड द आंसर. बिग डेटा का मतलब होता यही है. somebody will say आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन करेगी बड़ा बड़ा काम. आज इनकम टैक्स में रिटर्न वगैरह नोटिस भेजना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे. देयर इज नो ह्यूमन बींग्स इन इंडिया. वेयर इन्फोसिस हैज डेवलप्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो और ज्यादा ह्यूमन बींग्स का काम कम हो गया है. पहले मशीन्स वेयर डूइंग नॉर्मल मोनोटोनस जॉब, नाउ द मशीन्स आर डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेदर फोरकास्ट, weather forecast is very essential for meals at home, because the demand for food, the type of food will be changing based on the weather forecast. Weather forecast can be done based on artificial intelligence. Artificial intelligence will be helpful in giving orders to the suppliers. अपने आप, even the way where we are using packing department में laborers, where we can use artificial intelligence. अगर हम लोग बोलेंगे जो वही वाला बात की, I mean to say the app development का cost, how it is different, तो आपको मैं करीब मेरे ख्याल से 25 बार बोल चुका फरवरी से कि भाई मैं अपना ऐप बनाया हूं, बार बार खर्चा, अभी फिर खर्चा लग रहा. आज फिर मेल में बात हुआ कि देयर आर सम चेंजेस रिक्वायर्ड इन द ऐप एंड देयर विल बी 20 आवर्स एंगेजमेंट. तो वो बोल रहा है 20 इंटू 500 10,000 रुपया लगेगा. अब ये हम लोग स्टूडेंट से तो नहीं मान रहे, लेकिन ऐप में खर्चा तो लगते ही रहता है. तो ऐप का कॉस्टिंग आप कैसे करेंगे, लाइफ साइकिल कैसे डिसाइड करेंगे. और वैसे भी हमारे ऐप में तो पेमेंट है ही नहीं. हमारे ऐप में तो केवल क्लासेस आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. उसके अलावा तो ऐप हमने कोई पर्पस के लिए बनाया नहीं है. उसमें भी इतना खर्चा होता है, उसमें भी रेगुलरली चेंजेस आती रहती है. तो ऐप का कॉस्ट एक बार का नहीं है, इट्स अ रेकरिंग कॉस्ट. वेबसाइट में ऐसे खर्चा नहीं है. मे बी इन 1 ईयर 2 ईयर समटाइम सम डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, कुछ खर्चा लग गया. बट ऐप में तो हर महीना हर क्वार्टर खर्चा है. इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स. और फिर ऐप का कितना, माने कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं. बिकॉज हमारा ऐप तो केवल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके पास है. वी आर नॉट प्रमोटिंग आवर ऐप दैट यू डाउनलोड, यू गेट रिसोर्सेस एंड ऑल दैट, बिकॉज उसमें यूट्यूब वाला वीडियो ही डाला हुआ है. तो मैं क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप उसका कॉस्टिंग कैसे करेंगे, आप उसको डेटा को सेव कहां करेंगे, फंक्शनैलिटी चेंज करेंगे, फीचर्स चेंज करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे नई चेंज करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए आपको चेंज करना होगा. तो आपका रेगुलर खर्चा है ना, उसको फोरकास्ट आप कैसे करोगे. तो हम लोग इस बात को जितना याद, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम लगता है कि मिस्टर देबारसी हैज रिटन प्योरली बाय टेकिंग फ्रॉम समवेयर. वो बात मान नहीं रहे, बिकॉज जो लैंग्वेज लिखा हो वैसा लैंग्वेज हम लोग खुद से लिख नहीं पाते. मे बी यू आर कॉन्वेंट एजुकेटेड, देन ऑल्सो अथर्वा द वे यू आर राइटिंग द लैंग्वेज वी कैन बिल्ड दैट, बट द वे ही इज बिल्डिंग द लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी बिल्ट बाय अ कॉमन मैन. मे बी वट एवर इंग्लिश लैंग्वेज कमांड यू हैव, बट वो बात सुनना नहीं है. तो बार बार जब भी वो फोन करते हैं, सर बिग डेटा, सर ये इसका कॉस्टिंग कैसे करेंगे, तो वो खुद ही लिखे इतना बढ़िया, मैं तो वैसा लिख ही नहीं सकता. तो मैं उनको बोलता हूं, उनको समझना ही नहीं है कि आप डॉक्टर से झूठ बोल रहे हैं. डॉक्टर से यू कांट से लाई. मान लीजिए मैं अगर पहली बार पढ़ाता होता, दूसरा तीसरा बार है, सर नहीं 30 साल हो गए सर, 1 सेकंड में समझ में आ जाते क्या क्या चोरी आपने किया है. बिलीव करिए, बिकॉज मे बी इफ आई विल से देन समबडी विल से दैट सर आई हैव नॉट डन दैट. तो नहीं झगड़ा करना यार, ठीक है, इट्स योर कॉल. देन केपीआई में अभी भी अथर्वा फिर से आपने और देवश्री का मेरे को याद नहीं है, मैंने पहले चेक किया था, गलती किया है कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि जब आप केपीआई लिख रहे हैं, यू नीड टू फोकस, दैट शुड बी मेजरेबल. आपका इतना 2-3 लाइन लिखने से भी फीलिंग नहीं आता है कि उसको मेजर कैसे करेंगे. वेरी सिंपल वे इट कैन बी मेजर्ड. और अगर मेजर है, अभी जो क्वेश्चन था उसमें था कि देयर आर 5 केपीआई वी आर यूजिंग, we are contradicting that those 5 KPI are not relevant for packing department. तो अब आप नीचे जो KPI लिखेंगे उसमें आप तो ऐसा लिखिए जिसमें आप जो ऊपर बता रहे हैं वो प्रॉब्लम ना हो,
कि यू विल बी इजिली एबल टू कोरिलेट दोज केपीआई विद द पैकिंग डिपार्टमेंट। अगर आप भी केपीआई वैसा ही लिख रहे हैं जो ऊपर में आपने प्रॉब्लम बताई वो वहां पर भी है, तो अल्टीमेटली एग्जामिनर को क्या लग रहा है, इनको समझ में नहीं आता है, इनको बस जो भी लिखना है। When 5 methods they have mentioned and we are contradicting all those 5 methods, और नीचे हम जब केपीआई मेंशन कर रहे हैं हम भी वैसा कॉन्ट्रेडिक्टरी आंसर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से देवश्री आपने बहुत अच्छा लिखा है, मेरे को ध्यान आया अभी कि देवश्री हैज रिटन द 3 केपीआई स्ट्रेट एकदम, विच इज नॉट रिटन इन द मॉडल, बट वही लिखना है जो चीज मेजर किया जा सके एंड एट द सेम टाइम जिसको हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं, कंट्रोलेबल है उसके लिए, हम उसी को केपीआई बनाएंगे तो फायदा होएगा। इफ आई एम सेटिंग सम टारगेट्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट डिपार्टमेंट और डिवीजन और द मैनेजर, और इफ आई एम सेटिंग सम टारगेट विच इज नॉट मेजरेबल, देन इन दैट केस दैट इज नॉट अ केपीआई। तो आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कभी भी, इसका मतलब आप केपीआई ठीक से बता नहीं पा रहे। वो तो 2 लाइन में समझा देंगे आप कि हाउ वी विल मेजर एंड हाउ इट विल बेनिफिट इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट डिवीजन। तो केपीआई के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, सिंपल लिखिए ना यार, डिफिकल्ट क्यों लिखना है। मिस्टर दादा कॉल्ड मी डे बिफोर यस्टरडे एंड उन्होंने बोला कि सर केपीआई में ऐसा ऐसा मेरे को ध्यान नहीं है। तो मैंने बोला पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए सिंपल केपीआई क्या है कि हम लोग फूड को कितना देर में पैक कर रहे हैं। हाँ, दादा ने बोला, मिस्टर देबारसी वाज सेइंग दैट सर वी कैन सेट अ केपीआई हाउ मच डिलीवरी टाइम दे आर टेकिंग। मेरे को लगता है पैकिंग डिपार्टमेंट का काम पैक करना है, डिलीवरी देना नहीं है। डिलीवरी तो लॉजिस्टिक्स वाला आकर लेकर जाएगा, अगर वो लॉजिस्टिक वाला डिले कर रहे हैं पहुंचाने में, उसमें पैकिंग डिपार्टमेंट का क्या इश्यू है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं, फिर से हम लोग गलत एरिया में जा रहे हैं। हम लोग को बोलना होगा कि हम लोग को पैक करने में कितनी देर लगती है। मे बी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इट विल बी टेकिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज किसी में पोर्शन ज्यादा है कम है, बट हाउ मेनी पैकिंग्स वी आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वेदर वी आर इंप्रूविंग आवर, उसमें तो हमारा ही काम है। हम ऐसा केपीआई यूज करेंगे जो मेजरेबल है और जो डायरेक्टली हमारे से रिलेटेड है। ज्यादा हैंकी फैंकी उल्टा पुल्टा लिखने जाने से यू नीड टू राइट मोर एंड स्टिल इट इज नॉट क्लियर। आप सिंपल रखिए केपीआई को, उसको घुमाइए मत। अगर हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए टाइम सीरीज रिग्रेशन, जैसे लास्ट क्लास में देवश्री वाज सेइंग, टाइम सीरीज क्या है? टाइम के बेसिस पे फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द लास्ट 4 years, 5 years, 10 years और मे बी 2 years, व्हाटएवर। हम लोग को क्या ट्रेंड मिल रहा है, ट्रेंड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम लोग का ट्रेंड तो इंक्रीजिंग है, 20-25% ग्रोथ, बट वेदर दैट ग्रोथ इज एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर ऑल्सो। और अगर 20% ग्रोथ है तो हर महीना सेल थोड़ी ना बढ़ता है, कभी सेल गिरता भी है, डिफरेंट सीजन्स आर देयर। सो इन टाइम सीरीज वी डू सीजनल वेरिएशंस ऑल्सो। इन अ ईयर द ग्रोथ इज 20%, but within the year it is not every month, every quarter 20%. Somewhere it is down, somewhere it is more and all that. And at the same time, time series purely depend on past data, past analysis. Can we say that the past analysis is purely relevant for future? Are we going for new product? Are we going for new market? Are we targeting new audience? Are we changing our product features, vegan product or anything? तो उसके लिए हम टाइम सीरीज कैसे लगाएंगे? वो तो पुराने डेटा पे डिपेंडेंट है, वो आगे के लिए कैसे चलेगा? कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, टाइम सीरीज, रिग्रेशन, देन इंडेक्स नंबर और एनीथिंग, दे आर फॉर फोरकास्टिंग। हर टेक्निक का एक फायदा है, एक नुकसान है। आपको ध्यान से सोचकर फायदा नुकसान क्वेश्चन से कोरिलेट करके बनाना है। अदरवाइज इफ यू से एडवांटेज डिसएडवांटेज टेक्निकली, हाफ मार्क्स। इफ यू आर नॉट यूजिंग द सिनेरियो गिवन इन द क्वेश्चन, बैलेंस हाफ नहीं मिलेगा, बिकॉज सिनेरियो को यूज करके आंसर देना जरूरी है। जस्ट दैट इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, एक बार मार्किंग गाइडलाइंस के बारे में। जैसे मैं एक एक नंबर करके देता हूं, इंस्टीट्यूट मना कर रहा है, प्लीज डोंट अवॉर्ड मार्क्स थ्रू आउट 1 mark 2 mark, एज दिस में बियर लिटिल रिजेंबलेंस टू द फाइनल मार्क एंड गिव्स स्टूडेंट द रॉन्ग आइडिया। कि मान लीजिए एक एक नंबर देने के बाद मैंने भी फील किया कि मान लीजिए आपने 5 पैराग्राफ लिखा, मैंने 5 पैराग्राफ पे आपको एक एक नंबर दे दिया, 5 नंबर, एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 9 marks, लेकिन मेरे को आपका पैराग्राफ अच्छा नहीं लगा है,
तो देन इन दैट केस आई एम गिविंग यू मोर देन 50% मार्क्स, बट इन साइड माई नॉलेज आई एम थिंकिंग दैट मेरे को 5 नंबर आपको देना नहीं चाहिए। या कभी कभी मैंने आपको एक एक नंबर करके 5 नंबर दिया, बट यू राइट अप इन द पैराग्राफ्स आर बेटर देन नॉर्मली, बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो मेरे को कहीं पर 2 भी तो देना हो सकता है। तो दे आर सेइंग may appear little resemblance to the final mark and gives a student the wrong idea. We need to stress the idea of trying to resolve under 3 category. आपका लेवल 1 में आंसर है कि लेवल 2 में कि लेवल 3 में। आपका आंसर मैंने जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ए बी सी और ए बी 2 पार्ट्स है पढ़ा, उसका लेवल डिसाइड कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो भी लेवल मैंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली पूरे पैराग्राफ पे आपको मार्क्स दिया जाएगा और साथ में कमेंट किया जाएगा कि आपका लेवल लो या हाई क्यों है। This student had enough point but needed more application to this scenario. आपकी गलतियां कहां है उसको बोल दिया गया, because as I said, इन्होंने भी लिखा है level 2 in the example was worth for 4 to 6 marks. This student got say 6 marks. The mark awarded for sub tasks. मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लेवल 2 में है, लेवल 2 मतलब 1/3, 2/3 greater than 2/3. So level 2 मतलब 2/3. 2/3 means out of 6 the student should not be getting greater than 4. उसको 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा, बट फिर भी मान लीजिए एग्जामिनर ने 6 नंबर दे दिया, सो दैट शुड नॉट बी डन, वी शुड अवॉइड दैट द इंस्टीट्यूट इज गाइडिंग दैट हाउ द मार्किंग शुड बी डन, नॉट ऑन पैराग्राफ बेसिस। यू रीड द आंसर, बेस्ड ऑन द आंसर यू कैटेगराइज द स्टूडेंट इनटू अ पर्टिकुलर लिंक। लिंक में आप क्या सोचेंगे, इंस्टीट्यूट बोल रहा है आपको 3 कैटेगरी में उसको बांटना है, वेरी बैड, मिडिल एंड वेरी गुड। वेरी बैड मतलब पॉइंट्स ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, सिनेरियो यूज नहीं किया। मिडिल मतलब यूज किया लेकिन उतना प्रॉपरली नहीं किया, और बढ़िया से यूज किया, देन यू आर टेकिंग हिम टू द हाईएस्ट लेवल। Obviously, some subjectivity will be there, 1 or 2 marks, but then this is the guideline given by the institute to give you the marks. लेंथ वगैरह आपका प्रॉपर होना चाहिए, और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली गलत लिखा है, मतलब जो पूछा गया वो आंसर ही नहीं दिया, तो फिर 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं देना है। इफ द स्टूडेंट इज राइटिंग टोटली रॉन्ग आंसर, no marks will be awarded. This is why 1 mark per point is useless. एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक नंबर नहीं देना चाहिए। एंड 1 सेकेंड, 0 कहां लिखा है, an answer which does not address the requirement of the task must be awarded 0 marks. आपने लिखा होगा बहुत बढ़िया, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे, जो पूछा गया यू आर नॉट आंसरिंग दैट, देन द मार्क्स विल बी 0. नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दैट आंसर. मे बी यू हैव रिटन वेरी वेल, बट बिकॉज द स्टूडेंट इज नॉट राइटिंग व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो उस केस में एकदम सीधा गाइडलाइन से 0 मार्क्स. सो वी कैन सी दैट व्हाट मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड. वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस मिस्टेक. वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन टाइम, कि कितना टाइम है, कितने पार्ट्स हैं, हाउ मच टाइम आई कैन गिव, एंड व्हाट शुड बी माई प्रॉपर लेंथ. We should not give extra time on something we know. Maybe 1 or 2 minutes extra, that other thing. But अगर आप 5 to 10 minutes extra दे रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा. We should not leave a single part of any question. आता हो नहीं आता हो, we are bound to write the answers for all the parts. We can't leave them. Because if we leave any part, the chances of passing will be very less. आपको पूरा पार्ट का आंसर देना ही पड़ेगा जितने पार्ट्स हैं, और प्रॉपर टाइम फ्रेम के अनुसार. अगर नॉर्मली इसको फॉलो करते हैं, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट सिनेरियो को यूज करते हैं, जो पूछ रहा है वो लिखते हैं, देन इन दैट केस द चांसेस दैट वी विल डेफिनेटली पास, अनलेस एंड अंटिल 5% गॉड इज नॉट फेवरिंग अस, बिकॉज 95% इट्स योर ओन एफर्ट्स, योर ओन एबिलिटी टू पास द एग्जाम. 5% इज नॉट विद इन योर हैंड, 5% इज बियॉन्ड आवर हैंड. हम लोग उसको 5% बोलते हैं, बिकॉज 5% इज इन गॉड्स हैंड. इसीलिए हम लोग भगवान जी के पास जाते हैं. 95% तो हमारे अपने हाथ में, हमारा उन्नति अवनति जो भी होना है. दिस आई थॉट दैट कि व्हेन यू ऑल हैव रिटन द आंसर, दीज आर द एरियाज विच इज स्टिल गेटिंग प्रॉब्लम. फिर भी आप लोग दोनों को अगर कुछ पूछना हो, एनीथिंग टू आस्क, यू कैन आस्क. आई विल एक्सप्लेन. अथर्वा एंड देवश्री. Yes, sir. So you mentioned the
Because now they are saying this is shared by them today, yesterday only with me. So they are saying that कि आप एक एक नंबर मत शेयर करिए, आप पूरा पढ़ लीजिए, एक रैंकिंग दे दीजिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड बेस्ड ऑन रैंकिंग आप पूरा नंबर दीजिए, दैट वे. Okay, because like in KPI you said it wasn't appropriate and it wasn't properly rated. नहीं, but in KPI I have given out of 5 marks to 2 marks to you ना, so that was appropriate. You should be deserving 2 marks. क्योंकि गलत नहीं है, अच्छा नहीं है, that I can say. Okay. तो मैंने एक एक नंबर अलग करके दिया, नीचे भी मैं 2 ही देना चाहिए, 2 या 3. 2 ही ठीक है, बिकॉज आपका लास्ट वाला KPI ठीक नहीं है, और ऊपर दोनों में भी आपने एक्सप्लेनेशन ठीक से लिया नहीं है, तो इसीलिए इट शुड नॉट बी गिवन मोर देन 2 marks. Yes, I thought it would get 0. नहीं, not 0, but I mean to say that you are understanding the concept of KPI. You are using some KPI which is difficult to measure, and you are using some KPI which we can say that which is difficult to analyze even for the department, even though you have written on the top 5 points which are not relevant. तो आपका भी KPI उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो 5 में 2 नंबर तो बनता है यार, क्योंकि KPI तो समझते हो, लिख रहे हो, उतना अच्छा नहीं बन रहा है. So you deserve to get 30-40% marks. अब मान लीजिए कोई टीचर उसको 0 देगा, मेरे को नहीं लगता है देना चाहिए, because it is not that you are not writing the answer to the question. I can take you to the level 1 or maybe lower level of level 2. मैं उतना ले जा सकता हूं आपको, लेकिन अब जब मैं चेक करूंगा, since they have given new guidelines, then I will be marking straight away on the entire party answer. In a question ABC 3 parts, मैं आपका रैंकिंग दूंगा कि आप लेवल 1, 2, 3 में है, क्यों है, क्या करना है, और टोटल मार्किंग दूंगा आपको. अब मान लीजिए मैंने 8 में आपको 6 दिया है, हो सकता है 7 मिल जाए, हो सकता है 5 मिल जाए, उसका आई कांट से, बिकॉज दैट यू नीड टू गिव मी बेनिफिट ऑफ डाउट. So can you share this with us? I will share with, because I got this yesterday only. I was reading, so I thought that I will be sharing with all of you. But this is related with the paper which I am taking now. So after the class, I will share this. Otherwise, you will get to know that what to write. ठीक है? आज के बाद अपने कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं. कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं अभी. देयर इज 2 calls ऑलरेडी. अभी मेरे को लगता है कि आई शुड बी टीचिंग यू, नॉट डिस्टर्बिंग यू बिकॉज ऑफ माई कॉल्स. मैं बाद में उनको कॉल बैक कर लूंगा. सो आई विल गिव यू कॉल बैक. या आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आपको व्हाट्सएप करने में तकलीफ हो रहा है, आप मेल कर दीजिए कि दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज माई आंसर, दिस इज द इंस्टीट्यूट आंसर, कैन यू थ्रो सम लाइट. मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है. तो आपको ऐसा नहीं सोचना है क्लास नहीं है. दूसरी बात, आपको अभी आने वाला 5-6 डेज में क्या रिवीजन करना है. मेरी बात मानेंगे तो मानिए, नहीं तो अपना मानना है. इट इज माई रिक्वेस्ट, डोंट स्टडी एनी न्यू मॉक, एनी न्यू थिंग फर्दर. हो गया, बिकॉज नया मॉक में नया सिनेरियो होगा, क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहेंगे. आपने जो भी अभी तक किया है उसमें जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, मे बी वेरिएंस, मे बी रेलेवेंट कॉस्ट, मे बी रिस्क एंड रिटर्न, मे बी वर्किंग कैपिटल, जहां भी, दैट बिकॉज मे बी अथर्वा यू आर फेसिंग प्रॉब्लम एट दीज 2 एरिया, बट देवश्री इज वेरी गुड इन दीज 2 एरिया, सी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन अदर 2 एरिया, बिकॉज 5 फिंगर्स आर नॉट सेम. तो आपको वो पता है आपको प्रॉब्लम कहां है. उन चीजों को फिर से एक बार लिखकर करिए, बिकॉज लिखने से फीलिंग ज्यादा आएंगे. और जितना आपने पढ़ा है उन सबको रिवाइज करिए. And take a point that कि अभी अगर 5 दिन 6 days are left, every day you will write 2-3 pages always. आप जो भी पढ़ोगे आप उसको थोड़ा सा राइट अप, बिकॉज रिदम ऑफ राइटिंग शुड नॉट बी लॉस्ट. आपको रिदम बनाए रखना है. और उसके अलावा जहां कहीं भी कोई डाउट आएगा, आई एम देयर एज आई एम सेइंग. तो मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूं, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर, सपोज इट इज 1443, 243, आई एम टेकिंग से 247, बिकॉज मेल करूंगा, जाएगा, 2 मिनट आपके पास पहुंचेगा, खोलोगे तो 247 से एग्जैक्टली 45 मिनट्स के अंदर आपको आंसर सबमिट करना है, मेल करना है. फिर मैं दूसरा क्वेश्चन मेल करूंगा 45 मिनट्स बाद. जब तक आप पहला खत्म करते रहोगे उसके पहले दूसरा का मेल आपके पास चला जाएगा. आप उसका आंसर फिर 45 मिनट्स में सबमिट करोगे. ऐसे करके पूरा 3 घंटा आपको अभी देना है.
ये मैसेज नहीं आना चाहिए आई हैव इशू दिस दैट, इंटरनेट नहीं चल रहा है, नहीं। ये इसका पर्पज ही यही है। ये अगर मेरे को देना होता तो मैं पहले भी तो दे देता। तो मेरा पर्पज ये है कि आप तुरंत तुरंत अभी आंसर लिख कर देंगे। मैं आपका आंसर कल शाम तक, मैं चेष्टा करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, कल इवनिंग तक इसका फीडबैक मैं आपको दूंगा। साथ में क्लास के बाद मैं 2-3 मॉक जो मई में शेयर किए गए थे वो और दूंगा। देयर इज नो न्यू मॉक। आप उनका आंसर मत लिखना, लिखना भी है तो सब नहीं लिखना, उसको सबमिट नहीं करना है। आपको कुछ पूछना होगा पूछ लेना, मॉडल आंसर से को रिलेट करके तैयारी करना है, और नया कुछ पढ़ना नहीं है। एज आई सेड, देयर इज नो न्यू स्टडी रिक्वायर्ड, बिकॉज अर्लियर वी हैड 6, नाउ वी हैव 3, 9 मॉक्स, एंड कोर एरिया ए से लेकर एफ तक 6 ऑलरेडी। सो 9 और 6 15, एंड इन एवरीवेयर देयर इज एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस ईच। 4 के अंदर एटलीस्ट 2 पार्ट्स ईच, कहीं कहीं पर तो 3 पार्ट है। तो इफ वी से दैट 15 into 4 60, एंड इफ वी से 60 into 2, अगर कम से कम 2 120, इतना तो आपका चैप्टर ही नहीं है E1 P1 F1 में। इफ यू काउंट ऑल द चैप्टर्स, दे आर अराउंड 40-45 चैप्टर्स इन ऑल द 3 सिलेबस। तो आपको हर चीज बार बार रिपीट होके मिल रहा है, तो वो मोर देन इनफ है। आपको और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, बस अपने वीक एरियाज पे वर्क करना है और उनको अच्छा करना है। एंड रेगुलरली प्रैक्टिस इन राइटिंग इज अ मस्ट, वो आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज तभी एग्जाम में रिदम बनेगा। ओके, सो आई एम मेलिंग। So before you send it, यस, बोलिए सर। can you show us the structure of the exam, like the percentages? Because like we can see that before the timer starts, so I can see how long I can spend on each question and how many lines are. नहीं तो इन एग्जाम वेदर यू विल गेट दिस। Yes, sir. Before the timer starts, we get the percentages. You got the paper exactly when 45 minutes start, the first question. Because before to that they Take the percentages for each sub task. That's what I'm saying. If you go a bit above, the examination structure. Yeah. अच्छा ठीक है, you were saying this, that is okay. So all are AB in the middle one ABC 3 parts are there, 48 52 44 24 32 and 36 64 48 652. Actually first and last are same. The third one is basically first part is lesser, second part is more broader, and in the second one question 3 parts are there. एक question में 3 part generally होता है, they generally give that in the fourth question. बहुत चालू हो वो लोग और प्रेशर करने के लिए, but here it is in the second question 44 32 and 24. Otherwise maximum first and fourth same marks 12 13 12 13. Then this one you can say 36% means around 25 75 25 6 150. So it is 9 marks and 25 minus 9 16 marks, 9 and 16. And this one you can say 11 marks, 6 or 7 marks, and then balance 11 plus 6 17, so 8 marks. 11 6 8 12 13 11 6 8, then 9 and 16, and then 12 13. That is the marking. That way you need to utilize the time. ठीक है ना? So you will be writing the answers and submitting one by one in 45 minutes each. दादा को मैं बोल देता हूं, दादा को सबमिट नहीं करना है, बिकॉज इसका पर्पज ये इस पेपर का कि आप अभी क्या करते हैं, बिकॉज ये एक अलग तरह का चैलेंज है। एक हो गया क्वेश्चन पहले मिल गया, खोल के देख लिए, सोच लिए, फिर सोच सोच के आंसर लिख रहे हैं। दैट इज नॉट द मॉक टेस्ट। सीमा OCS फर्स्ट क्वेश्चन class test. I should write class test first question. You will be writing the answers in a Word file and you will send. Mago.
So it is, you can say 249, you take 250. तो 250 से 45 मिनट्स मतलब 335 तक आप लोग को सबमिट करना है. एंड बिफोर 335, 1 or 2 minutes earlier, I will send the second one. So like that, you will go on getting one by one after 45 minutes and you need to submit. Okay? I am logging off. You don't have to open internet and all that. Just चुपचाप से आंसर लिखिए. But just don't see anywhere. एक बार एकदम genuinely what you can perform, you check. So that in 5 days you can put focus on the other areas which are required to be focused. Okay? Yes. Thank you. So, Sorry.